Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of this chapter, sound. We have discussed the method of producing the sounds. किस तरीके से sound produce हो रहा है. How does the human beings can produce the sound by this voice box. ये भी हम लोगों ने देख लिया था. Now we will discuss about the propagation of sound. Propagation. Propagation means the transfer of the sound from one place to another by some medium. क्या हो रहा है यहाँ पे? Propagation means the traveling of the sound from one place to the another. इसका मतलब क्या हुआ? The traveling of the sound from the source of sound where it is produced, और जहां से वो कहां तक जा रहा है, जिस पर्सन को वो सुनाई दे रहा है वहां तक की जो उसकी मूवमेंट है, that is called the propagation. Okay, propagation is the method that required some medium. अब यहां पर क्या होता है? What do you mean by the medium? Medium is the matter or the condition through which any type of sound can travel from one place to another. Medium क्या है? Medium is the substance or matter through which any sound will travel from its source to the hearer. जो भी हियरिंग पर्सन है वहां तक क्या होता है, इसकी साउंड जाती है, तो इट इज कॉल्ड द मीडियम. इट मे बी वाटर, इट मे बी एयर, इट मे बी अ लिक्विड. तीनों कंडीशन हो सकती है. एंड फोर्थ वन इज वैक्यूम. ठीक है, वाटर समझ में आता है, लिक्विड समझ में आता है, एयर समझ में, सॉरी गैस समझ में आता है. बट व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम? Vacuum is the medium, the place where no medium is present. यहां पर ये तीनों ही चीज में नहीं है. आई बात समझ में? Vacuum is the place where no medium is present. वहां पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है. तो what we have to understand? We have to understand what is the propagation, how does it propagated, how does the sound is propagated through the vacuum. ये तीनों ही चीज हम लोग देखते हैं by the activities. First of all, यहां पर क्या लिखा हुआ मैं बता दूं आपको थोड़ा सा. The propagation of sound in the air can be compared to the expansion of balloon. बलून के फैलने से हम लोग सोच सकते हैं. As the balloon expands in all the directions, so the sound propagated in all the direction. पहली बात, sound can be propagated into the all directions. Next, so it is the sound propagated in the all the as the sound is generated. जैसे ही sound generate हो रहा है, it causes the layer of air immediately around to it to vibrate. अपने आसपास की air को क्या करता है? ये vibrate करता है. The vibrating layer of air transfers the vibrations to the next layer of the air. Thus the vibrations keep on moving outward from the source, such as waves, and carry the sound forward. क्या होता है कि यहां से साउंड का जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे होगा? इन द वेव्स, लाइक द वेव्स. लाइक सपोज करो यहां से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल गोज इनटू द वेव्स. ये ऐसे साउंड जाएगा फ्रॉम द सोर्स टू द ईयर. हमारा जो कान है वहां तक जाएगा. ये आई बात समझ? यहां तक ये प्रोपगेटेड हो रहा है साउंड, तो क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेव. आ रही बात समझ? इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में ये जाएगा. ओके, then hence the sound travels through the vibrations that is creates the medium around it. वो क्या होगा? ऐसे vibrations है जो वहां पर जो ऊपर जो present medium है वो medium create कर रहा है. then है propagation of sound through the solids and liquid. हम लोग एक एक एक्टिविटी देखते हैं. first of all, the propagation of sound through the solids. solid हमारे पास क्या है? suppose is the table. इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा एक पर्सन है, वो पर्सन अपना कान लगा के यहाँ पर सुन रहा है. इसको एक पर्सन अपना कान लगा के सुन रहा है, इसका हाथ है यहाँ पर टच है. तो हम लोग ये देखते हैं whenever just like the air, first of एक्टिविटी यहाँ पर शो किया, शो द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स. टेबल एंड स्टूल, दो टाइप की हम लोगों को ऑपरेशन लेने हैं. सिट्स ऑन द स्टूल, हम लोग पहले टेबल स्टूल के ऊपर बैठते हैं. प्लेस योर ईयर एट द एंड ऑफ द टेबल. किसी भी एक टेबल के ऊपर हम लोग बैठते हैं तो हमारा कान जो होता है वो हम लोग उसके ऊपर टिका लेते हैं. देन
स्ट्रेच योर हैंड एंड स्क्रैच द टेबल एट द अनदर एंड। एक एंड के ऊपर मैंने कान लगा दिया अपना, दूसरे एंड के ऊपर मैंने क्या किया, उसको स्क्रैच कर रहा हूं मैं, या कोई भी चीज से मैं उसको टक 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 कर रहा हूं, तो क्या होगा, द साउंड विल गोज टू आवर ईयर, हमारे कान तक उसका साउंड आ रहा है। इट मीन्स द मीडियम इज द सॉलिड दैट कैन ट्रेवल, दैट कैन प्रोपेगेट द साउंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द हैंड। जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज प्रोड्यूस एंड देन इट विल गोज टू द ईयर, यहां तक जनरेट हो रहा है। तो देन मीन्स आई कैन से द साउंड कैन प्रोपेगेटेड थ्रू द सॉलिड, सॉलिड से भी क्या होता है, ये प्रोपेगेशन हो सकता है। देन द above activity shows that the sound can propagate through the solid. Let's perform an activity to show that sound can travel through the string. क्या ये एक छोटे से धागे से भी ट्रेवल हो सकता है? आप लोगों ने पहले देखा होगा, हम लोग छोटे बच्चे थे तब करते थे कि एक जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, जो पेपर का कप होता है, उस कप के दो छेद निकालते थे हम लोग, बीच में एक स्ट्रिंग बांधते थे और हम लोग एक दूसरे के अपने फ्रेंड्स के कान में लगा देते थे और कुछ बोलते, एक जना बोलता था और एक जना सुनता था। तो दैट साउंड विल ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग ऑल्सो, उस स्ट्रिंग के थ्रू क्या होता है, वहां पे जाता था साउंड। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द लिक्विड। हाउ डज इट पॉसिबल? आई कैन से, अगर हम लोग ये चाहें, व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज अ वाटर टैप, वाटर टब, उसके अंदर टब भर लिया हम लोगों ने पानी का, एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज अ बैल, जो बैल घरों में होती है ना, जो घंटी होती है मंदिर की घंटी, वैसी एक घंटी लेनी है और उस घंटी को हम लोगों को पानी के अंदर रखना है। अपना हाथ घंटी को पकड़ के हम लोग पानी के अंदर रखते हैं एंड हम लोग उसको हिलाते हैं तो इट विल स्टक, वो क्या आगे, दैट प्रोड्यूसेस द साउंड, दैट प्रोड्यूसेस द साउंड, हमको सुनाई देगा साउंड। हम लोग अपना कान नीचे बाल्टी की तरफ रख देते हैं, टब की तरफ रख देते हैं, तो नीचे जब घंटी लगा रहे हैं हम लोग तो आवाज आती है, बट इट इज लेस देन द सॉलिड्स, इट इज लेस देन द सॉलिड्स। यहां पर साफ साफ उसने दिया हुआ है आपके टेबल में कि एक बंदा जो है वो आपके टेबल टब के अंदर पानी है, उसके अंदर बैल लगा के खुद सुन रहा है कान लगा के। इट मीन्स साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द लिक्विड ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका क्या, डेमोन्स्ट्रेट द वाटर, सो डेमोन्स्ट्रेट द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अब यहां पे पता है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड डू नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम क्या बोला था मैंने, द प्लेस वेयर नो मीडियम इज प्रेजेंट, जहां पर कोई भी लिक्विड सॉलिड गैस प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इट इज द वैक्यूम। ये वैक्यूम कंडीशन है। इन दिस कंडीशन द वाटर, द साउंड विल नॉट ट्रेवल थ्रू द मीडियम। क्या होगा, उसने बोला क्या है कि सपोज वी आर यूजिंग अ बेलजार, उसने एक बेलजार यूज किया, एक ग्लास का बना हुआ बेलजार उसने यूज किया है, एंड दिस बेलजार हैज द पोर डाउन साइड, एक नीचे क्या होगा, छोटा सा पोर कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर से दो वायर अंदर डाल दिए एंड यहां पर क्या होगा, एक उसने क्या लगा दिया, एक बेल लगा दी। यहां पर क्या कर दिया उसने, एक बेल लगा दी, जो डोरबेल होती है हमारी, वो वैसी एक बेल उसने लगा दी है। ठीक है, उसके बाद में उसको बैटरी से अटैच कर दिया। इसके वायर्स जो थे ना, इन दोनों को हम लोगों ने किससे अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच किया है। तो व्हाट वी हैव विल अपीयर, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट अपीयर होगा। कैसे, मैं आपको बता दूं, पढ़ के बता देता हूं आपको मैं। मेथड क्या है, टू सेटअप द एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर। इन दिस सेटअप एन इलेक्ट्रिकल बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द बेलजार। एक कांच का बना हुआ एक बेलजार है, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल बेल लगा दी यहाँ पे, एंड देन द बेलजार इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। यहां पर क्या होगा, एक पंप जो बना दिया मैंने, वैक्यूम पंप, दैट विल रिलीज इट्स ऑल द एयर। इसके अंदर जो एयर भरी होती है उसको निकाल दिया। उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धीरे धीरे बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, व्हेनेवर द वॉल इज क्लोज, वॉल क्लोज था, उस कंडीशन में उसने क्या किया, जो यहाँ पे स्विच था, इस स्विच को दबाया, स्विच को दबाया, then the bell will ring, then the bell will ring and the sound comes to the hearer और पर्सन, जो भी पर्सन है वहां पे उसको साउंड सुनाई दिया, बिकॉज इट इज फिल्ड विद द एयर। यहां पर क्या है, एयर फिल्ड है। क्या है यहाँ पे, एयर फिल्ड है। बाय रिलीजिंग द एयर बाय वॉल वी कैन रिलीज द एयर फ्रॉम द बेलजार। बेलजार से मैं धीरे धीरे क्या होगा, जो आपकी साउंड जो एयर है दैट विल रिलीज कर दूंगा उस एयर को। देन व्हाट विल हियर, द साउंड विज कमिंग लेस,
साउंड या लेस साउंड इज कमिंग फ्रॉम द बेल जार, इस बेल जार से क्या होगा, कम साउंड रिलीज होगा, ठीक है। आफ्टर दैट then when all the air entire air or complete air is released from the bell jar, यहाँ इस बेल होल से क्या करूंगा मैं, कंप्लीट एयर को बाहर निकाल दूंगा, और जब मैं इसको बेल को दबाऊंगा, जब स्विच को दबाऊंगा तो बेल विल रिंग बट नो साउंड विल बी अपीयर आउटसाइड, कोई भी साउंड बाहर नहीं आएगा। क्या ऑब्जर्वेशन देखो, this makes when the key is pressed the circuit of the electrical bell is completed, this makes the electrical bell ring which was heard even outside of the bell jar, बाहर भी सुनाई देगी। The air is now slowly removed from the bell jar by using the vacuum pump, इस वैक्यूम पंप से क्या किया मैंने, एयर को निकाल दिया। As the quantity of air inside the bell jar is gradually reduced, धीरे धीरे कम हो गई है, the intensity of sound also goes on decreasing, intensity of sound is also decreasing। Observation क्या है इसका, when all the air is removed from the bell jar, no sound is heard even through the hammer strikes gong repeatedly। इस जो हमर है इसका, इस गोंग के ऊपर कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है, कंटिन्यूसली हमर हो रहा है, लग रहा है उसके ऊपर, बट साउंड इज नॉट कमिंग टू द पर्सन, हमारे पास में साउंड नहीं आ रहा है। आई बात समझ, तो इट इज द वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू वन मीडियम टू अनदर। वैक्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर क्या है, what we have to understand, we have to understand the method by which we can hear the sound, human beings can hear the sound। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, we have our ears for hearing, हमारे कान हमारे पास है for hearing। आई बात समझ, our ear has three parts, our ear has three parts, that is outer ear, middle ear एंड इनर ईयर। तीन टाइप के ईयर के पार्ट्स है हमारे पास, आउटर ईयर दैट हैज द ईयर पिन्ना, मिडिल ईयर दैट हैज द बोन्स, दैट हैज द बोन्स। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हमारे कान की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, यहाँ पे जनरल बना रहा हूं मैं, क्लियर आपको बना नहीं पाऊंगा, आपको बता देता हूं कि हमारे पास में जो हमारा कान है वो इस तरीके से है, और इस तरीके से हमारे अंदर क्या है, एक कैनल जा रही है, एक पाइपलाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कान बना रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, इट इज कॉल्ड द आउटर ईयर, इट इज कॉल्ड द ईयर पिन्ना। ये क्या है आपका, ईयर पिन्ना, क्या है, ईयर पिन्ना। इसके थ्रू क्या होगा, ये पाइपलाइन अंदर जा रही है, इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होगा, साउंड कैन गोज इनसाइड, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, अंदर जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा, एक ईयर ड्रम होता है, यहाँ पर क्या होगा, ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम के आगे क्या होगा, थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स आ गया, थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स आ रही है, बोन्स आ गई। बोन्स आने के बाद क्या है, यहाँ पर कुछ एक कॉक्लिया अटैच होता है, स्प्रिंग लाइक, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। फिर उसके बाद में ये हमारे कान तक आगे जाती है, नीचे ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या चीज है, इट इज नोन एज द कॉक्लिया, नोन एज कॉक्लिया, बोन्स इट्स कॉल्ड ईयर ड्रम। क्या है ये, ईयर ड्रम, और इट इज नोन एज ईयर कैनाल, इट इज नोन एज ईयर कैनल। क्या है ये, ईयर कैनल है, क्या है ये, ईयर कैनल है। तो हमको क्या करना है, ये चीज समझनी है, कैसे मैं कल भी आपको बताऊंगा, बट व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग थिंग इज दैट द एयर विल पास थ्रू दिस, इसके अंदर से एयर पिन्ना के थ्रू क्या होगा, एयर विल और साउंड विल गोज इनसाइड थ्रू द ईयर कैनल, और इट इज द आउटर ईयर। आउटर ईयर कैन कलेक्ट द साउंड प्रोड्यूसिंग आउटसाइड एंड ट्रांसफर इट टू द ईयर कैनल, ईयर कैनल में डल जाएगी वो, देन इट विल गोज टू द इनर साइड और इनर ईयर एंड इट स्ट्राइक्स टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर ये स्ट्राइक करेगी, चोट करेगी, धक्का मारेगी, जाकर टकराएगी उससे, देन द ईयर ड्रम विल गेट्स वाइब्रेटेड। ईयर ड्रम का जो स्किन है, जो पर्दा है हमारा कान का, उसके ऊपर साउंड गिरेगी और साउंड क्या करेगी, उसको वाइब्रेट कर देगी। ओके, एंड दीज वाइब्रेशंस आर highly
इंटेंस, क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और द बोन्स विल इंटेंस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, उन जो साउंड वाइब्रेशंस जो आ रहे हैं उन वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को क्यों कौन कर देता है, ये बढ़ा देती है। दीज आर द बोन्स, दीज आर द बोन्स नोन एज मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस is the smallest bone of the body and it is present in the ear, हमारे कान में प्रेजेंट होती है स्टेपिस। all these bones can increase the intensity of these vibrations and these frequency, इनको बहुत ज्यादा frequency बढ़ा देती है, इनकी बढ़ा देती है। and after that the cochlea is the spherical part that is coiled, it will changes the vibration into electrical circuits, electrical impulse, electrical signals में इसको क्या कर देता है, ये change कर देता है। then after the signals will move to the brain, हमारे signals जो होंगे वो कहां तक पहुंच जाएंगे, brain तक जाएंगे, and the brain will reflects the sound itself, उसके साउंड को क्या करेगा, वो उसी तरीके से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एंड हाउ डज दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस गोज टू आवर ईयर, हम लोग समझ पाते हैं, उसको सुन पाते हैं। आपको प्रॉपरली मैं कल इस डायग्राम को और बना के समझाऊंगा। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।